NSDC's eSkill India has joined hands with American India Foundation for enhancing employability skills and providing career guidance to college students through its course Essential Employability Skills for Indian Youth. You can follow 4 simple steps to enroll in this course. Step 1. Log in or register yourself on eSkill India portal. To enroll in the course, click on the above banner on eSkill India portal. The banner will appear on the eSkill India main page. In case banner is in motion or not visible, you can click on the corporate training button available to reach the NSDC AIF training program. If you have registered yourself before, you can log in and continue. But if you are a new user, click on sign up, fill all the details. You will need to verify your phone number or email ID. Once verified, click on I agree to terms and conditions. You have now completed the registration process. Now you can log in and enroll in the course. Step 2. Enter coupon code. After you have logged in, enter the coupon code and click submit. Step 3. Select course and language. The course is available in 2 languages. To do the course in English, click here. Kindly remember, you will not be able to change the language of the course after enrollment. Select the language of the course carefully. Click on Enroll. Click on OK. Step 4. Go through all the modules and clear the final exam to earn any certificate. After completing all the lessons in each module, you will have to give final assessment. Completing the final assessment is mandatory to complete the course and earn certificate. To give final exams, click on Final Exam. Each candidate will be given 3 attempts to clear the exam or improve the final score. The best score out of the 3 would be displayed on e-certificate. Now click on Quizzes. Click on Take Quiz and complete the quiz. One and all, on behalf of the Career Guidance and the Placement Cell of R.K. Talreja College, I extend a warm welcome to our principal ma'am. I hope she has joined by now. Dr. Geeta Menon, our vice principal ma'am, and the HOD of the physics department, also the convener of the cell, which is organizing the event today, Professor Neelam Kapoor, our faculty member HOD of economics department, Professor Manju Shri Dole, other faculty members, the co-members of the career guidance and the student placement cell, and all my dear students. The Career Guidance and the Student Placement Cell of R.K. Talreja College, in association with University of Mumbai's Garware Institute of Career Education and Development, has organized a series of webinars. The first webinar held yesterday, and that was Career Counseling and Employability Skills. And the resource person for the same was Megha Bansal, and also Miss Mahima, who gave a presentation on the various vocational courses that are available to the students during and after their graduation. The next part of the webinar in the same series is today, and it is titled as Career Options and Preparation for MPSC, UPSC and Banking Exams. As a member of the career guidance and the placement cell of our college, through the years, I have come to know that many students are interested in appearing for various competitive exams, because that is when you are getting better placements and professional jobs to be better placed in life. And we, as the cell of the college, towards that aim, we throughout the years and every year we hold a number of sessions informing the students about the various career avenues open through these exams, and also holding sessions on how to prepare for these exams. So in continuation of the same, today we are having a session on how to prepare for the MPSC, UPSC and banking exams. And in addition, we will also be coming to know about the various other career options which are available through these exams in various sectors and fields. Here I would also like to note
that the college this year has taken initiative and formed a committee for this specific purpose. The committee is named as Competitive Exam Committee, and it is mentored by the HOD of the Economics Department, Dr. Manju Shri Dole. I would now request Ma'am, Manjushri Dole Ma'am, to kindly address the gathering as to what are the activities which are to be done by this committee and how they are going to benefit the students. Ma'am, are you there? Dole Ma'am? Hello. Yeah, Dole Ma'am? Yes, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. Yes, yes. Thank you so much. Welcome, ma'am. Yes. Respected Principal Madam, Dr. Geeta Menon, respected Vice Principal Madam, Neelam Kapoorji, then Career Counseling and Employability Skills Committee, and dignitaries on the dais, and dear friends, students. Students, this year we have started a committee called Competitive Exam Committee, specifically for guiding those students who want to appear for various competitive exams like UPSC, MPSC, banking, staff selections, and many other such competitive exams. So our committee will guide you what exactly these exams are. What are the papers, what are the formalities when the advertisement comes, and what are the subject options which you can choose, or what are the languages in which you can appear for these exams. Every detail, even the minute detail, will be provided by this committee, not only providing the details, but in the library we are having separate same section of the books which are useful or which are meant for appearing for these exams. So our librarian, Dr. Neeta Gundewar, she is the convener of this committee, competitive exam committee, and definitely she will be helping you in choosing those books and making those books available to all of you. So dear students, take the utmost advantage of this facility. Apart from providing you this preliminary or basic information and providing you the suitable books and study material, apart from that, throughout the year, we are planning to have lecture series which is suitable, which is useful, which is very much informative and definitely helpful to you for appearing for these exams, because whatever expected questions, whatever format of the question paper, everything you will know by attending those lectures. Not only you will know the format of the question paper, but for preparing for the subjects which you are choosing, because in these exams you need to select or choose some subjects. So which subjects are more scoring, which subjects are little bit less scoring, all everything knowledge about everything you will get. And once you choose your subject, then we will go through the data which subjects majority of the students have offered, and accordingly we will be say providing guidance lectures from various faculty members. But we will be inaugurating our say program of this committee, first program of this committee on 6th March at 1 p.m. So all the students who are interested in joining and in listening to this particular committee, what the work they will be doing, what kind of guidance they will be giving. So please start same from this 6th March onwards, and after that we will create a group of students and we will keep on informing that target group regarding various lectures which we are going to arrange. On 6th March at 1 o'clock, we will be having a guidance lecture by Dr. Sunil Dhapte,
who is director of Yashada, which is a very, very renowned, say, government institute, where the training for various government departments sessions are arranged, and he is having expertise in all such competitive exams. So you will get at source information, not only the information from Dhapte sir you will get, but after that, under his guidance, many more lectures again from such renowned institutions we will be announcing. Apart from our lectures, now there are number of government institutions which are providing free lectures and free study material and free library as well as study rooms in Mumbai itself. So information regarding that also we will be providing in due course of time. So interested students, they can always contact either me or Dr. Neeta Gundewar, our librarian madam, and definitely be in touch with us. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you so much for giving detailed information about the various aspects of the competitive exams which will be tackled by the members of the committee, and also listing out the various activities which will be done, undertaken by the competitive exam committee in the coming months. My dear students, you have already got an advance notification about the seminar which will be held on the 6th of March at 1 p.m. So I know that many of our students are interested in all these competitive exams because they are a gateway to lucrative jobs and professional careers. So looking at all these things, our college has taken one more initiative for your advantage and benefit. Kindly use this to your advantage. Thank you, Dole ma'am, once again. Now, coming back to the session for today, as I told you that our career guidance and the student placement cell of our college in association with Mumbai University's Garware Institute of Career Education and Development has organized the session for today, that is career options and preparation for MPSC, UPSC and banking exams. I now welcome the host for the session, Miss Sania. Sorry, I'm very sorry, Miss Mahima. The co-host is also Miss Sania. The session today presentation will be first provided by Miss Mahima, and then the guest speaker for the day will be Mr. Gaurav Gawande. I welcome you both, sir, to today's session. And I hand over the session to Miss Mahima. Ma'am, are you there? Mahima, ma'am? Also, can you start because Mahima is facing some network issues? Pardon, ma'am? Now, actually, Mahima is facing some network issues and she could Can not. I then welcome Mr. Arshia. Gaurav Gawande? Sir is ready? Ma'am, sorry, is also facing issue, but ma'am, ma'am, Arshia, can you start, please? I'll contact Gaurav sir once it's. Yes. Yes, ma'am. Sania, ma'am, are we ready to begin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Kindly address the session, ma'am. Hello, am I audible? Yes, yes, you are. Yes. So I'll be taking over Mahima till the time she joins back. Okay. So good afternoon, everybody. Mahima, you are on mute. Arshia. Hello. Yeah. Yes, yes.
Garware Institute of Career Education and Development, in association with American India Foundation and Dell Technologies, have organized a career guidance and counseling program. On behalf of our director, Dr. Shivram Garje sir, and our assistant director, Shilpa Borka ma'am, I would like to welcome you all to this workshop. We would also like to express our gratitude to Principal Dr. Geeta Menon, Botany Department, the Vice Principal Neelam Kapoor, Conveyor of Career Guidance and Placement Cell, HOD of Physics Department, and Dr. Leedam Mulchandi, English Department, co-convener of Career, for giving us this opportunity to organize the workshop for you all. So first of all, I would like to, ask you to applaud yourself that you all are here for, attending and, taking a step further to understand about career guidance and employability skills. So normally, we see that, since childhood that we want to become a doctor, engineer, but as we grow up, we see that we see our surroundings, हम अपने surroundings को देखते हैं, and we get to understand there are other sectors also that like now there are banking sectors also, and we've understood that there are banking jobs also, and we've started getting exposed to our surrounding and situation, and that gives us so many opportunities to understand so many careers are there, and we are here to make you understand why career is important and what are you supposed to be doing. And there are so many people who tell take this up, take that up, so we are here to give you a little guidance. Next slide. Sanya, next. Hello. Am I audible? Hello. Hello, Sanya, next slide. Yeah. Done. I can't see you on the screen. Is it visible to everybody? Yes. You're on the career planning slide. No, I mean the project Future Ready. I can't see. I think my laptop has hung for some reason, but just let me know if it is, if everybody can see the. Can others see the slides for this project Future Ready? Hello. Hello. Can the others see the project Future Ready slide? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Yeah. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Can you just try sharing again? No, ma'am. No, ma'am. Can now you share No, ma'am. the screen? No, ma'am. No, no. No, 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 no. No, No, ma'am. no, ma'am. No, ma'am. Yes, we understood. Sanya will put the proper slide on the screen. I've already shared the screen. Should I share my own screen and speak then? Yeah, try. Yes, ma'am. All right. Can you give me the access for screen sharing? 60 kilo. Yeah. Aisha, now you can share the screen. Okay. Okay, wait. Is the project Future Ready screen visible? Yes. Yes. Okay. Yeah. Yeah. 1 minute.
Now this project is brought to you, sharing the vision for to develop future workforce in India. Dell Technologies, in partnership with American India Foundation and National Skill Development Corporation and University of Mumbai, they have launched a project Future Ready, so that they can equip the workforce with career skills. And this project basically aims that students should go through career mentoring, leveraging online skill platforms, and providing market aligned skills, training for employability, and inculcating entrepreneurial mindset set. um, uh, Now coming to career planning. So now, do you know what is the difference between a job and a career? Can anybody say what is the difference between a job and a career? Any idea? Mahima ma'am, kindly, they are muted, I think so. Ma'am, they can unmute themselves. Can anybody just give a try and say, what do you know, like what is the difference between a job and a career? Anyone? No? A job could be Yes. temporary, but a career is a whole path towards. Career is more permanent, I think. Yes, absolutely. You're right. Job is basically you perform to earn money for your daily basic needs, and career is something where you shape it for your long term and based on your interest and passions. So it is very important to embark upon and fulfill your professional goals and ambitions. And career planning has essentially four components. First being the self assessment, second career exploration, then being focused, and action plan. And it's very important that we understand where our strengths lie, हमारे interest कहाँ पर है, and where we can do very well. Based on self assessment, we can discover various educational training, various opportunities, and also following industrial trends that suit best to our personality and interest. Do you all know about LinkedIn? Have you all heard about LinkedIn? Yes, ma'am. Yes. So can anybody say what is LinkedIn? It's like a Facebook Job for searching. For work. job searching. Correct. Just like we have social media platforms, LinkedIn is also a business networking platform. So important होता है कि आप LinkedIn पे अपना प्रोफाइल बनाएं, and आप और make yourself more known to people in the industry, and that is how you will get jobs. So I believe you have been told about the career mentoring test, the psychometric test. Nowadays, when interviews take place, a personality test is taken, and they want to see how your temperament, whether your personality works with the job, आप वो job के लिए suitable हो कि नहीं. And ये जो psychometric test है, ये test में you have a personality test, a interest test, and while you take this test, you will get a report as well. So उसमें आपको समझ में आएगा आपके इंटरेस्ट कहाँ पर है, आपको क्या अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप अपने फ्यूचर करियर के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं. ये है NSDC, जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये एक 5 आवर का प्रोग्राम है. सो यहाँ पे you will understand how to handle you will learn skills as to how to handle a customer, communication skills, digital literacy, and many such modules है ये वाले NSDC e-skill program पे. Mahima, are you there? Will you be able to share the video as to how to register? Hello? Yeah, I'll just share this. Yeah, I'm just stopping. Yeah. What I would say is that start working towards, gathering a lot of certificates like this, which is given opportunity, which is given like NSDC. This will help you in highlighting your resume. So it is very good.
Can you see this picture on the screen? ये picture दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes. तो Yes. क्या ये Yes, ma'am. picture में क्या दिखाई दे रहा है? Yes. Bridge. And can anybody say that why do we build bridges? क्यों bridge को build करते हैं? For crossing. For crossing the path. For cross. Generally, we Connectivity, yeah. build bridges to cross over an obstacle like a valley, river, or any other small water So body. link two different paths. Yes, Connectivity. absolutely. Yes, absolutely. तो आप कोई बता सकते हो ये पिक्चर में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? What is the problem you find in this image? The bridge isn't connecting two paths. Wrong place. Like- Bridge river में आगे का है ही नहीं. Not Bridge Okay. towards river. the river. Bridge river पे होना चाहिए था, ना कि Building two wrong parts में place. Connect ही नहीं है. The bridge was properly built over a river to cross, to cross from one place to another. But so Yes. there's a story behind this picture. So this river is called Choluteca River, located in Honduras, South America. तो क्या हुआ था कि ये जगह में बहुत तूफान आता था, हरिकेन्स आता था. सो वन सच हरिकेन ये पूरे रिवर की दिशा को ही बदल दिया. ब्रिज तो वहीं पर बना था जहां रिवर बना है, बट हरिकेन ने वो रिवर का दिशा ही बदल दिया. तो आप में से कोई बता सकता है ये पिक्चर का स्टोरी क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? व्हाट मैसेज डज दिस पिक्चर गिव? That you should be flexible. सूख गया पानी. No, not Sugya Pani, but yeah, flexible definitely. Like, did we even know that the Nothing pandemic? is permanent. Yes, nothing is permanent. Yes. Like, did we know that even the pandemic would occur with the situation of lockdown? No, right? Like, this bridge is a foundation. Okay, this is your base, and things keep changing across and around it. And what we need to do is that we have to cross over the bridge. The bridge can become only useful अगर हम ये bridge को थोड़ा extend कर सकते हैं. So we also have to, become flexible and extend ourselves and become more adaptable to the coming times. So like what you have studied now, you will definitely need that. But apart from that, you will have to learn more skills and more knowledge, and we have to keep learning. So we need to bring about changes so that we can keep pace with the time. So say, for example, if you know about Nokia, multinational company, who stopped at the market in its days, but it didn't survive, right? And it was, thrown out of the competition. And now even when it's trying to make its comeback, it's still not able to make its mark. So now we are talking about employability skills. So employability skills can be defined as skills, understanding, and personal attributes that make someone more likely to gain employment and can be successful in their chosen occupation, which benefits themselves, the workforce, the community, and economy. And when we talk about employability skills, there's a report by Deloitte Access Economics. They considered that by 2030, the people should be very well aware of soft skills. Kal jaise, if some of them were there in Megha ma'am's thing, so she was talking about hard skill and soft skill. So by 2030, people have to be aware about soft skills. And now we will be talking about few of the employability skills you all should be keeping in mind when you join work. The first being adaptability and flexibility. आप चाहो या ना चाहो, change will be a part of the new era of work. Employers आजकल they're looking for more people who can move out of their comfort zone, and they can see change as an opportunity for growth and innovation. Like during the pandemic, you all have likely faced and overcome new adversities and challenges that you didn't see before. So you should, introspect and see where your strengths lie and how you have able to overcome these few months of pandemic and lockdown, and try to see where you can incorporate some of the strengths of yourself in the workforce, and also adapt. Next would be emotional intelligence and communication skills. It is very important that you should be aware about your people. आपके ऑफिस में अगर आपके colleagues हैं, उनके साथ आपको you have to show that you care.
show emotion, just don't be selfish in the office, show that you're caring for others, you're showing empathy towards others. And that will also show how you're taking initiatives also. And communication skills is also very important. Achieving product communication skills is an essential tool in achieving productivity and maintaining strong working relationships at all level of organizations. And this has been particularly important since the outbreak of pandemic, and has forced so many people to work from home. So clarity in emails and virtual meetings is absolute must in this current times, which you all should keep in mind. And all of this goes hand in hand with teamwork and collaboration. And today's basic mantra of business is that we have to collaborate. आज के recent times में efficiency is very important, and all the team members of the organization work towards a goal. So आप अगर टीम में काम करोगे तो आप एक दूसरे के साथ काम करने को समझोगे कि where उनके साथ आप सीखोगे. और working as a team in collaboration with each other will always give you an opportunity to learn from each other's success and failures. And when you have a competent and experienced people in your team, you will definitely undergo a better problem solving approach and develop better skills. And talking next is leadership. And a leader is not only a good team player, but he's also a vital he plays a vital role in building and leading the entire team. तो लीडर के कंधे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, फ्रॉम क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड सेटिंग अ एग्जाम्पल and delivering the results. So आपकी टीम का सक्सेस तभी होगा when आपके लीडर, या if you are a leader of a team, you are able to plan, manage and make difficult decisions and much more. And to be a successful leader, it's important that you cultivate your leadership skills. So आप अपने leadership skills पे और काम कीजिए and see where you can also take initiatives in little things, and whichever works best for you in your business wherever you work. टाइम मैनेजमेंट. सो ऐसा देखा जाता है कि वी से दैट हम बाद में कर लेंगे काम, अभी नहीं बाद में, बट वर्क प्लेस में ये सब होता नहीं है. मतलब दिस विल नॉट बी एंटरटेन्ड. Time is money, and effective time management skills can have a positive impact on your work and life in general. When you learn to take control of your time on daily basis, आप रोज के काम को properly time management करेंगे आपके personal professional life, so you will learn how to maintain a balanced life. So make better decisions, and most importantly prioritize आपको क्या important है क्या नहीं. Maintain a proper routine, have your meals on time, and काम के साथ साथ you should have set a proper time where you can spend time with your family as well. स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल. तो ऑफिस में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत डेडलाइंस, कमिटमेंट्स, सब कुछ अचीव करना पड़ेगा. सो present day jobs are highly insecure, full of challenges, high expectations, demands, and that will definitely cause stress. So what we need to do is that you all should learn how to manage stress properly. आपके जो stress, a little amount of stress अच्छा है काम के लिए, like a amount of stress that will push you to achieve your goals and give you high productivity. And try to think which are the stress which is unnecessary and is just hampering your work. So try to eliminate those negative stress and envision towards good stress, and that pushes you to achieve your goals. Needless to say that today everything has become digital, and then the popularity of the digital workplace is growing due to the health concerns with pandemic. You need to be up to date with all the digital communication and the latest technologies and the online platforms. Otherwise, I think it's going to become very difficult now to work on without digital platforms in current times. Data literacy, in a world increasingly powered by data literacy is as important as literacy itself, and an organization's ability to succeed will be heavily dependent on its employees' ability to learn new language. So if you going to your workplace, you have to understand what the data of your company is, and so that you have a knowledge to put your opinion forward, and making better decisions for your organizations. This project is brought to you by American India Foundation, and they are into economic development and
change in India, and it works towards livelihood employment generation. And this project is also in association with Dell Technologies. Now talking about job application and essential skills. So we have normally seen that आप मूवी के लिए प्लान करते हो तो आप मूवी का टिकट के लिए प्लान करते हो, कौन से शो के लिए, किसके साथ जाओगे, व्हाट आर द शो टाइमिंग्स, बट आपने इतना मेहनत किया है अपनी करियर के बारे में सोचने को. So start thinking about what are your skills, think of polishing them up. How do you use your qualification? How do you say that I am the one you are looking for, I am the best person you should be hiring? So if you take the psychometric test, you will definitely understand where your strengths and your weaknesses lie, and in your interest lies, and accordingly take your work forward. Resume is also extremely important, knowing how to present them, how do you put yourself in the best possible way. Your resume may sound amazing on the piece of paper, but आप जब interview में जाओगे, अगर आप अपने बारे में अच्छे से बता नहीं पाओगे, तो then there's no use. So making a proper CV is also extremely important. So now talking about University of Mumbai's Garware Institute of Career Education and Development. Our college is located in inside the university campus. So if you come to Kalina, definitely do visit us. We are into skill-based education, and an education which will give you a lot of opportunity to work in the work better in the organization and the industry concerned. We have undergraduate diploma, then we have undergraduate bachelor degrees program in various fields like retail, pharmaceuticals, paint. Then we also have jewelry designing and customs and logistics. So there are very many courses, and so depending upon your interest and the field you like, you can take up any program which we are offering here. And these are some of the areas. So look where your interest lies and how you can monetize on it, and because that is how you will have fun. आप जो interest वाला course लोगे और उसी पे काम करेंगे future में, तो आपको अच्छा लगेगा कि आप काम पे मतलब खुशी खुशी जा रहे हैं, we are going happily. So try to see where you can learn as much as possible, and enroll yourself in various courses. Enroll in master's degree courses also, which we have here. We have on tourism management, agribusiness. So now I would like to call, now with that, I would like to end the presentation in the sense, now call upon the speaker. Hello, good afternoon. Gaurav, sir. Yes. Hi, good afternoon, everyone. Hi, this is Gaurav. Hello. Hello, everyone. So let me just introduce Gaurav, sir, for you. His name is Gaurav S. Gawande, and he has 7 years of work experience in agri and agri-allied field. He's worked as SR manager at Indian Oilseeds and produced Export Promotion Council under Ministry of Commerce, Government of India. He also was authorized signatory for health certificate for European Union for sesame crop. And he's done Kharif crop surveys for sesame and groundnut in the year 2017 for Government of India. Currently, he's working at our institute, University of Mumbai's Garware Institute of Career Education and Development, as a visiting faculty for MABM and retail management as a subject matter specialist. Welcome, sir. Thank you very much, Bina. Thanks, Atan, for such a lovely introduction. So, सबसे पहले I would like to ask you all कि आपको जो चीज मैं बताने जाने वाला हूँ, वो हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या मराठी में चाहिए या हिंदी इंग्लिश मिक्स चाहिए? English या हिंदी में, sir? Mix. You can type in a chat box as well. Sir, no, sir, मराठी में नहीं, sir. थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में आपको जानना पड़ेगा, सी, क्योंकि आप जानने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स के बारे में, राइट? अब दोनों चाहिए, ओके, ठीक है। तो मैं ज्यादातर हिंदी में बताऊंगा, कुछ टर्म्स हैं जो हिंदी या मराठी में नहीं बता पाऊंगा। एमपीएससी के लिए ठीक है, मैं मराठी जरूर कोशिश करूंगा, है ना? तो बेसिकली जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, आपने सुना होगा, ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है, मैं ये चाहूंगा कि आपको
आप थोड़ा लिख लीजिएगा, थोड़ी नोट्स ले लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो यूपीएससी है, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नेशनल लेवल पे एग्जाम ली जाती है फॉर द गवर्नमेंट पोजीशंस। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि कौन सी पोजीशंस है जिसके लिए ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें 24 डिफरेंट सिविल सर्विसेज हैं, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट जो है 24 डिफरेंट सिविल सर्विसेज आर देयर। तो 24 अलग अलग पोजीशंस हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं जिसके अंदर ये एग्जाम की जाती है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है ये कंडक्ट की जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी तरफ से। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर या सबसे ज्यादा आपके सुनने में आई होगी वो होगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। बेसिकली यूपीएससी के अंदर 3 टाइप हैं जो सिविल सर्विसेज है। इसमें एक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, जिसमें आईएएस आता है, आईपीएस आता है, और आईएफओएस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और फॉरेस्ट सर्विस ये आती है। फॉरेन सर्विस जो है वो ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंदर आती है, जिसके अंदर तकरीबन 16 से 17 सर्विसेज हैं जो आते हैं, जिसमें से कुछ मैं बताना चाहूंगा। एक है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस विच इज IAAS, देन इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस स्टेट सर्विस, इंफॉर्मेशन, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है, आपने सुना होगा अंबरनाथ की तरफ एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, जैसे नागपुर में है, वर्धा में है, अलग अलग जगह पे वहां पे पोजीशंस के लिए भी एग्जाम ली जाती है। देन कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस जो है उसके अंदर भी कई सारी पोजीशंस है जिसके लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट की जाती है। रेलवे अकाउंट सर्विस के लिए भी, और रेलवे पर्सनल सर्विस IRPS जो है, देन रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो IRTS के नाम से जानी जाती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये ग्रुप ए सर्विसेज में ये सर्विसेज आती है। देन आता है ग्रुप बी सर्विस, जिसमें CDS की जो एग्जाम होती है, जैसे आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स वाली सिविल सर्विस होती है, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। अब सवाल ये आता है कि IS बनने के बाद आप बेसिकली क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर IS के लिए एग्जैक्ट क्या काम होते हैं, राइट? तो IS में बेसिकली जो कलेक्टर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर्स होते हैं, तो पोजीशंस IS इज बेसिकली गवर्नमेंट का एक हैंड होता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उसको फॉर्मुलेट करने में, मतलब उसे बनाने में और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनका वो उसमें रोल रहता है। तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो होते हैं वो IS काम करते हैं। प्लस जो इंडियन पुलिस सर्विस होती है, वो इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर अगर आप देखेंगे, आपने रॉ का नाम सुना है? रॉ CBI इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके अंदर जो पोजीशंस है उसमें ज्वाइन होने के लिए बेसिकली IPS की एग्जाम कंडक्ट की जाती है। देन फॉरेस्ट सर्विस जो है, उसमें जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेस्ट है, DG ऑफ फॉरेस्ट, और उसके जो हाईएस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को एज अ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अंडर वो सर्व करते हैं। ऑल्सो उनको अलग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे भी उनको काम करने का मौका मिलता है। अब ये जो एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन दिया है, अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए सिलेबस क्या होता है। देखिए, इन एग्जाम्स को क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको जो प्रिपेयर करने, जो आपने सुना होगा ना कि लोग 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, नहीं, देखिए आपको उसको स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ाई करना है। आपको पहले समझना होगा कि सिलेबस किस तरीके से है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपको ठीक तरीके से ज्यादा वक्त ना गवाएं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आप में से मैक्सिमम लोग इसके लिए ऑलरेडी मान लीजिए आपकी 40 to 50% ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर जो सिलेबस है, जो चीजें पूछी जाती है, वो आज तक जो आपने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे ही पूछी जाती है। 10th 12th तक लेवल के सवाल भी होते हैं और ग्रेजुएशन लेवल के सवाल भी होते हैं।
तो आपको बस ये समझना है कि कौन से टॉपिक के बारे में आपको प्रिपेयर करना है। तो जो एग्जाम्स होती है, यूपीएससी कहे, एमपीएससी कहे या फिर आईबीपीएस कहे, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक होते हैं प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस एग्जाम और तीसरा जो होता है वो होता है इंटरव्यू। तो फर्स्ट जो प्रीलिम्स होते हैं, अब एक बात आपको फिर से ध्यान में रखना है कि जब एग्जाम के लिए आप अपियर करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो उसका लिमिटेशन है। अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं तो 6 अटेम्प्ट, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स यू कैन टेक। मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप फाइनल ईयर में रहेंगे या लास्ट ईयर में रहेंगे, उसके पहले अगर थर्ड ईयर में है तो ट्राई टू अटेंड दिस एग्जामिनेशन, ताकि आपको आइडिया है किस तरीके की एग्जाम है, प्रीलिम्स एटलीस्ट आपको समझ में आए। तो प्रीलिम्स में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, एक होते हैं जनरल स्टडीज 1 और दूसरा होता है जनरल स्टडीज 2। अब जनरल स्टडीज 1 में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो जनरल स्टडीज 2 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें 80 मतलब 80 क्वेश्चंस है जो 200 मार्क्स के, तो दोनों 2-2 घंटे के एग्जाम्स है। अब जो जनरल स्टडीज 2 है उसे CS80 भी कहा जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ऐसा उसको कहा जाता है। इसका जो पैटर्न है उसको आप समझिए कि जनरल स्टडीज 1 में बेसिकली आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और सोसाइटी, इसके ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है। जनरल स्टडीज 2 जो है उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पोलाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके ऊपर थोड़े से सवाल पूछे जाते हैं। अब ये होने के बाद जो मेन एग्जाम आती है, मेन एग्जाम में पेपर ए, पेपर बी और उसके बाद पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 7 पेपर ये और 2 पेपर, मतलब टोटल 9 पेपर्स आपको जो है वो देने पड़ते हैं, 9 पेपर आपको देने पड़ते हैं। अब इसको आप समझिए कि पेपर ए और पेपर बी में क्या है। पेपर ए में बेसिकली एक इंडियन लैंग्वेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी लैंग्वेजेस दिए गए हैं इंक्लूडिंग मराठी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेजेस है, उसमें से एक इंडियन लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। देन इंग्लिश के ऊपर भी सवाल होते हैं। देन पेपर 1 होता है ऐसे राइटिंग बेसिकली, जो उसके बाद फिर से जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 और फिर आते हैं जो पेपर 6 और 7 है वो ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप इफ यू आर फ्रॉम, आप लोग जो है वो मेरे ख्याल से साइंस, आर्ट और कॉमर्स अगर मिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताऊं कि ऑप्शनल में क्या क्या सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, zoology, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, लॉ, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, देन अकाउंटेंसी, कॉमर्स के लिए भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। देन लिटरेचर, कोई भी एक लैंग्वेज का उन लैंग्वेजेस का कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, सिंधी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी भी है, कन्नड़ा, आसमीज, डोगरी, गुजराती। तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करके उसके ऊपर लिटरेचर के ऊपर भी सवाल होते हैं। अब ये हो गए ऑप्शनल 1 और 2 में। जो जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4 जो है उसमें बेसिकली जनरल स्टडीज 2 में आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पोलाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। अब इसमें से काफी सारा जो हिस्सा है वो आपने जो आज तक हिस्ट्री और सिविक्स जो पढ़ा है, तो सिविक्स में जितना आता है और पॉलिटिकल साइंस के अगर कुछ नोट्स आप रेफर करेंगे तो इसमें से काफी हद तक चीजें आपकी सॉर्ट होगी, मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अब जनरल स्टडीज 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में काफी सवाल पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद जो स्टेज होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू आप अगर क्रैक करते हो, एक बात जानिए, जो एग्जाम होता है पूरा ये थ्रू आउट द ईयर चलता है, इसमें 1 साल जाता है। मान लीजिए जून जुलाई में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके बाद अगस्त सितंबर में आपका जो होता है वो प्री एग्जाम होता है। देन अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका मेन एग्जाम होता है और फेब मार्च के वक्त आपके इंटरव्यूज होते हैं और मई जून में आपके रिजल्ट लगते हैं। तो देखिए इसमें लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं और एंड में इंटरव्यू तक सिलेक्ट होके 1000-1200 लोग लगते हैं। मतलब इफ यू आस्क मी, लास्ट ईयर कुछ 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से सिलेक्ट हुए थे 2-2.5 हजार।
अब उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कई लोग सिर्फ देकर देखना है इसलिए भी अप्लाई करते हैं। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस, सो यू कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एज ए यूनिवर्सिटी में यूपीएससी एमपीएससी का काउंसिल है, उसका बोर्ड है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको नोट्स अवेलेबल हो सकती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सकता है। सो अगर आपकी इच्छा है तो आप आपके मेंटर के साथ कनेक्ट करके हमसे फिर मतलब हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसके ऊपर आपको आगे गाइडेंस कर सके। अब ये हुआ थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में। इसके बारे में किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक लिंक भी आपको चैट बॉक्स में टाइप करके देता हूं, ताकि इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, इफ यू वांट टू नो, तो आप उस साइट पे जाके बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इट इज upsc.gov.in। वहां पे आपको पेपर पैटर्न भी देखने को मिलेगा। टोटल कितने मार्क्स का होता है? ओके, टोटल इसमें आप मान लीजिए ये जो एग्जाम है ये 200 मार्क्स और 225 मार्क्स के हिसाब से होता है। मतलब देखिए, जो जनरल स्टडीज जो प्रीलिम्स होती है, वो प्रीलिम्स जो है वो 400 मार्क्स की है। देन जो मेन एग्जाम होती है वो तकरीबन जो पेपर ए और पेपर बी होता है वो 300 मार्क्स के हो गए, वो हो गए आपके 600। देन पेपर 1 और पेपर 2 आप अगर पकड़ेंगे, बाकी सारे पेपर जो होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं। वो दो पेपर आपके ए बी जो हो गए वो हो गए 600 मार्क्स के, और पेपर 50 इंटू मान लीजिए 7 पेपर है, 250 बेसिकली 1750 मार्क्स इसके, प्लस 600 वो 2350, ठीक है। और 275 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि जो शुरुआत यूपीएससी में जो आपका प्रीलिम्स होती है ना, प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ आपको मेन के लिए अपीयर होने के लिए क्वालिफाई बनाते हैं। मतलब वो क्वालिफाई करेंगे आप प्रीलिम्स पास करके। टोटल मेरिट लिस्ट के लिए मेन एग्जाम और इंटरव्यू इतना ही काउंट किया जाता है। जबकि एमपीएससी का जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपका प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू, इन तीनों को काउंट किया जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। अब पूजा ने एक सवाल पूछा है कि अगर हिंदी में सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, जो यूपीएससी है इसमें दो मेन लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर इफ यू वांट टू अपीयर दैट इन हिंदी, द मीडियम जो है अपीयर करने का, हिंदी में आप वो एग्जाम दे सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। और एमपीएससी का साइट रंजन यादव, एमपीएससी के ऊपर भी आ रहा हूँ, पहले यूपीएससी खत्म कर दूं। यस, निगेटिव मार्किंग सागर, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, 1/3 जो होती है वो निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक सवाल का जवाब अगर गलत देते हो तो जो सही सवाल है उसमें से 0.33% मार्क जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। तो 1/3 मार्क आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए बुक्स, इसके बारे में काफी सवाल आ रहा है, तो मैं आपको बात बताता हूँ कि जो बुक्स होती है इसमें इंग्लिश के लिए एक पाल एंड सूरी की बुक है, प्रेमलता पाल एंड सूरी की बुक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। आप उसको रेफर करेंगे। जो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री है उसके लिए हर्षवर्धन करके एक बुक है, एंशिएंट हिंदी इंडियन हिस्ट्री। फिर गुप्ता एम्पायर, देन मगध एम्पायर। जैनिज्म के ऊपर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। हिस्ट्री के ऊपर फिर से देखिए, जो दिल्ली सुल्तानेट के अंदर जो मिडिवल हिस्ट्री है उसको भी आप पढ़ेंगे, जिसने विजयनगरी एम्पायर, भक्ति मूवमेंट, देन इंडिया अंडर द मुगल्स, उसको भी आपको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, परमानेंट सेटलमेंट किस तरीके से है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन हाउ इट वाज इन ब्रिटिश इरा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। देन इसको थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको पढ़ना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन आपको पढ़ना है। बॉडी वेव्स, कॉजेस, टाइप्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, उसके ऊपर आपको पढ़ना है। तो इसकी नोट्स जो है वो काफी हद तक अवेलेबल है, आप आसानी से उसको कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है।
अगर पर्टिकुलर ऐसी कुछ बुक्स बताना चाहूंगा तो RS अग्रवाल की एप्टीट्यूड टेस्ट वाली बुक है, उसको आप थोड़ा सा रेफर करेंगे। फिर 11th-12th के जो आपके टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री के लिए, उसे भी आप हेल्प करेंगे। फिर ज्योग्राफी के लिए ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस 10th 11th 12th 6th से लेकर 10th 11th 12th। फिर इंडियन पोलाइटी के लिए M लक्ष्मीकांत का बुक है इंडियन पोलाइटी, उसको आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, उसे थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर टाटा मैग्रो हिल का भी मैनुअल आता है, और अरिहंत जी का बुक है जो सिविल सर्विस के लिए बुक है। RS अग्रवाल का वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए रीजनिंग का भी है। देन मेन एग्जाम के लिए देखो आप इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के लिए कुछ बुक्स है। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, ये भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन जी की किताबें हैं फॉर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक वर्ल्ड एटलास करके भी बुक आती है, उसको भी आप रेफर करें। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, उसको भी आपको रेफर करना है। फिलोसॉफी के ऊपर भी कुछ किताबें आएंगी, उसको भी थोड़ा सा रेफर करना है। देन बजट के ऊपर और करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर और जो प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन है, उसको आपको रेफर करते रहना है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के लिए जो आप किताबें पढ़ेंगे, उसको दिन में नॉट मोर देन 45 मिनट्स, ठीक है, नॉट मोर देन 45 मिनट्स, आप उसको ज्यादा वक्त नहीं देंगे। कितने साल के करंट अफेयर्स पूछते हैं? करंट अफेयर्स मतलब क्या? अभी के जो हालात है, कितने साल के, मतलब पास्ट टेंस वाला बेटा वो प्रेजेंट में नहीं आएगा, ठीक है। हाउ मेनी अटेम्प्ट फॉर ओबीसी कास्ट, देखो। और न्यूज़पेपर द हिंदू, ओबीसी कास्ट उन बुक्स में प्रॉपर नेम सेंड कर दीजिए प्लीज, ठीक है। सो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है यूपीएससी में, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसका एज लिमिट और क्या कहेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए एज ग्रुप जो है वो मान लीजिए 32 इयर्स है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 35 इयर्स है, SC/ST के लिए 37 ईयर है। अगर आपने डिफेंस में सर्विस की है और उसके बाद आप फिर से अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 40 इयर्स की लिमिट है। अब जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है फॉर ओपन कैटेगरी 2000, ओपन जनरल कैटेगरी 2006 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर SC/ST कैंडिडेट उसके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, लेकिन एज लिमिट है 37 इयर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अमरीश, जो बेसिकली CS80 जो है, आप समझिए CS80 जो है उसको कहते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम में जो प्री राउंड होता है ना, उसमें जो जनरल स्टडीज 2 वाला जो पेपर है, तो उसको कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। वो जनरल पेपर 2 में आता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट यूपीएससी एग्जामिनेशन। एग्जाम में वो जनरल पेपर 2 है उसके लिए। अच्छा, क्लासेस में बात की, वो कह रहे हैं कि हिंदी में थोड़ी बुक्स कम अवेलेबल रहती है। बड़ा हिंदी में बुक्स अवेलेबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कई सारे स्टेट से बच्चे अपीयर करते हैं, जैसे बिहार, यूपी, तो वहाँ पे दे प्रिफर हिंदी लैंग्वेज, मेनी ऑफ देम प्रेफर हिंदी लैंग्वेज। तो इन लैंग्वेज में काफी बुक्स अवेलेबल है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। नोट्स भी अवेलेबल है, और अभी इंटरनेट वाला जमाना है तो आपको बहुत सारी चीजें इंटरनेट से भी मिल जाती है। अब जो जनरल जो CS80 के बारे में पूछा गया, CS80 में जो मैंने आपको कहा एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्लास 10th लेवल का होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। प्लस अगर आप कहेंगे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स है, उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। जो जनरल स्टडीज 1 है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें आपको करंट इवेंट्स,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर आपको पढ़ना है। इंडियन पोलाइट एंड गवर्नेंस के ऊपर आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल साइंस जो है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इट, दैट इज द फर्स्ट पेपर। सो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। और कुछ सर CSCT ओनली 35% ही आता है ना? देखो बेटा, यूपीएससी में ना जो प्रीलिम्स है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए मेंस की है। इसमें बेसिकली मेरिट में जो मेरिट लिस्ट लगती है तो इसमें इसके मार्क्स नहीं काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं यूपीएससी के ऊपर। इसके यहाँ तक और कुछ डाउट है? आपको ये भी समझना होगा कि किस टॉपिक को कितने मार्क्स हैं। उस हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। हेलो, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, very good. So basically अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है? देखिए, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा अभी से। अभी हम चाहते हैं कि ठीक है हम लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज के दिन अच्छे होते हैं, कॉलेज में हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ पढ़ाई में लगे रहो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कीजिए, एक्टिव रहिए। देखिए, जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देंगे, आपको रीडिंग भी करना है, आपको एक डिसिप्लिन लगाना होगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर आप मैं नहीं कह रहा हूँ कि आर्मी डिसिप्लिन या मिलिट्री डिसिप्लिन, लेकिन जो पॉसिबल है आपको उस हिसाब से ठीक तरीके से वक्त देके उसके लिए पढ़ना है, क्योंकि आप जो अभी करोगे वही आदत लगेगी और उस हिसाब से आपका बिहेवियर भी उस तरीके से होगा। आप जितना पढ़ोगे, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको सिर्फ रट्टा मारना नहीं, आपने जो पढ़ा है उसे आपको समझना है कि किस तरीके से। एंड ऑफ द डे जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसी में ये चीजें दिखती है। आपको लगता होगा कि नहीं अरे वो 10 मिनट इंटरव्यू के है, आधा घंटा इंटरव्यू का है, उसमें मैं पोर्ट्रेट कर लूंगा, मैं उसमें दिखावा कर लूंगा। वैसा नहीं होता है। वो जो 10 मिनट्स है, वो जो 15 मिनट्स है, देखो 275 मार्क्स का इंटरव्यू, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। और जो वो इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए बैठते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं। तो उस हिसाब से आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच, उस हिसाब से आपको तैयार करना है। इसके लिए काफी सारा गाइडेंस भी अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि आप अच्छे स्पीकर्स जो हैं उनके वर्कशॉप्स अटेंड करें, उनसे सवाल पूछे, बी इंटरैक्टिव। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से वक्त गुजारते हैं तो उसमें भी कुछ अच्छे फॉलो करने के लिए अच्छे पेजेस है, उसको फॉलो करें। लिंक्डइन करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, वहाँ पे आप एनरोल करके जो करंट अफेयर्स है, करंट चीजें हैं, मार्केट में जो इनोवेशन है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आपको नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी एमपीएससी, लेकिन बाकी भी एक पर्सनल लेवल पे आपकी पर्सनल डेवलप करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। अब मैंने जिस तरीके से यूपीएससी के बारे में बताया, हम कब अप्लाई करना चाहिए, ईवा के बाद क्या, ठीक है? ये एग्जाम जो होता है वो थ्रू आउट ईयर चलता है। आप जब सेकेंड ईयर में रहेंगे, जस्ट फॉर अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट आप इस तरीके से जाने दीजिए कि आपको समझ में आए। इसके लिए बेसिक ग्रेजुएशन आपको चाहिए। बेसिक ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन सही ना हो तो इंटरव्यू तो इंटरव्यू में फर्क पड़ता है क्या? देखो, कम्युनिकेशन तो लगेगा, क्योंकि तो पोजीशन यू आर गोइंग टू गेट, जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो आप किस तरीके से पॉलिसीज जो है उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरीके से आप फॉर्मुलेट करोगे। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, इस बात को आप समझिए। इसीलिए एबिलिटी जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके ऊपर भी आपको सवाल है। और कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। I'm a student of first one, so how can I start my study, sir? I am only reading the NCERT.
देखो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। अमरीश, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आप लोगों ने यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें आपके आंखों के अंदर से आपकी पढ़ाई में हो चुकी है, मैक्सिमम चीजें। अब बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं। आप यूपीएससी वाली जो साइट है ना, उसमें जो मैंने लिंक आपको शेयर किया, उसमें एग्जामिनेशन सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में वो भी आपको देखने मिलेगा। आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा, कट ऑफ मार्क्स भी देखने को मिलेंगे लास्ट ईयर, प्लस आपको सिलेबस भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। तो नाउ आफ्टर यूपीएससी कमिंग बैक टू द एमपीएससी, मैं एमपीएससी के ऊपर थोड़ा आऊंगा। एमपीएससी का पैटर्न भी उसी तरीके से है। महाराष्ट्र स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एग्जाम करते हैं, तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। इसमें भी 3 पार्ट है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब इसमें होता यह है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों के मार्क्स क्लब करके कंसिडर किए जाते हैं मेन मेरिट लिस्ट के लिए। जैसे यूपीएससी में सिर्फ मेन एग्जाम और इंटरव्यू कंसिडर किया जाता है, एमपीएससी में प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स कंबाइन किए जाते हैं। इसमें प्रीलिम्स में भी पेपर 1, पेपर 2 है। पेपर 1 में डिग्री लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें ऑप्शनल लैंग्वेज मीडियम है वो इंग्लिश और मराठी ये है। और पेपर 2 में भी इंग्लिश और मराठी दोनों, मतलब मीडियम आपका इंग्लिश और मराठी है। इसमें डिग्री और स्कूल लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। जो मेन एग्जाम है, जो स्टेट सर्विस एग्जाम है मेन, उसमें मराठी और इंग्लिश, उसमें से जो टोटल 100 मार्क्स का होता है, 12th तक के आपके सवाल पूछे जाते हैं। 3 आवर्स का पेपर है, वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें 50 मार्क्स फॉर मराठी एंड 50 मार्क्स फॉर इंग्लिश, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका ट्रांसलेशन, उसके लिए सवाल उसमें होते हैं। देन मराठी और इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके ऊपर पेपर 2 होता है, जिसका लेवल भी 12th स्टैंडर्ड तक का ही है, जो बेसिकली एमसीक्यू है, जिसके अंदर ग्रामेटिकल जो इडियम्स, फ्रेजेस, ये जो चीजें उसके ऊपर सवाल पूछे। तो फिर होता है जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4, जो 150 मार्क्स के पेपर्स है। मेंस में ये जो पेपर 1, पेपर 2 है वो 100 मार्क्स के, जो लैंग्वेज के ऊपर है, मराठी और इंग्लिश। उसके बाद जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4 जो है वो बेसिकली 150 मार्क्स, मतलब 150 मार्क्स का है। अब जो प्रीलिम्स में पेपर 1 है उसमें आपको करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र की हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर देके उसमें सवाल होंगे। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, महाराष्ट्र, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके ऊपर सवाल होते हैं। जनरल साइंस के ऊपर काफी सवाल होते हैं। जो पेपर 2 होता है उसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। देन जो क्लास 10th तक आपने मैथ्स पढ़ी है उसमें ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जो डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। देन मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जो 10th और 12th के लेवल तक ही है, उसके ऊपर सवाल होते हैं। मेन में बेसिकली मराठी और इंग्लिश जो मैंने कहा 50-50 मार्क्स, उसमें ऐसे भी लिखना होता है आपको अबाउट 400 वर्ड्स, और ट्रांसलेशन होता है मराठी पैराग्राफ इनटू इंग्लिश और इंग्लिश पैराग्राफ इनटू मराठी, अप्रोक्सीमेट हाफ पेज तक आपको उसको ट्रांसलेट करना है। देन जो ग्रामर है उसके अंदर मैंने जैसे कहा, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, पंक्चुएशंस, उसके ऊपर सवाल होंगे, सेम फॉर मराठी एंड इंग्लिश फॉर बोथ। इसके लिए कुछ सवाल, कितने मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो प्रीलिम्स है, वो प्रीलिम्स जो होते हैं वो फर्स्ट पेपर जो है वो 200 मार्क्स के है, मतलब 400 मार्क्स वो। और यहाँ पे जो 6 पेपर्स है, मतलब पेपर 1, पेपर 2 जो 100 मार्क्स के है, और उसके बाद जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 ये 150 मार्क्स के, मतलब टोटल 800 मार्क्स की मेन एग्जाम होती है और 400 मार्क्स की प्रीलिम्स एग्जाम होती है।
और इंटरव्यू के लिए आपके 200 मार्क्स होते हैं। इसमें टाइमली रिवीजन होता है। जैसे अगर आप एमपीएससी की साइट पे जाएंगे तो जिस तरीके से यूपीएससी की साइट है, एमपीएससी की भी साइट है। मैं वो लिंक भी आपको लिंक चैट बॉक्स में टाइप करता हूँ, ताकि वहां जाके आपको अगर इफ यू नीड मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमपीएससी यू कैन एक्सेस दैट साइट। क्या तो इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड एमपीएससी, आप काफी हद तक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। देयर आर एनी मोर क्वेरीज यू कैन आस्क। तो उसके बाद आईबीपीएस भी सेम तरीके से एग्जाम कंडक्ट की जाती है, लेकिन आईबीपीएस जो उसमें डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा कम होता है। जो बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स है, उसके लिए बेसिकली एग्जाम कंडक्ट की जाती है। इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन सर्विस जो है उनकी तरफ से एग्जाम कंडक्ट की जाती है। आईएफएस के लिए स्ट्रेटेजी अलग है क्या आईपीएस से? यस, देखिए आईएफएस, आईएफओएस या आईएफएस, सूरज कुमार आपको ये बताना होगा मुझे, फॉरेन सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस। आईपीएस में जो लॉज होंगे, सिविल वाले लॉज थोड़े ज्यादा स्टडी करने होंगे। जो फॉरेन सर्विस है उसके लिए आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसके बारे में और इंटरनेशनल कल्चर उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानना पड़ेगा। जो फॉरेस्ट है उसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट उसके ऊपर सवाल ज्यादा होंगे। तो नेचर ऑफ वर्क जो है हर पोजीशन में अलग अलग है, उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि कौन सी पोजीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको ध्यान देना होगा। Any queries? एमपीएससी के प्रीलिम एग्जाम्स के मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं होते। बेटा देखो, गूगल पे क्या है उससे बेटर, अब ठीक है आपका बिलीव है। आई वाज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो आई एम टेलिंग यू यूपीएससी में काउंट नहीं होते, एमपीएससी में काउंट किए जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये जस्ट एक क्वालिफाइंग स्टेज है, वो कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए फिल्टर किए जाते हैं। तो मार्क्स जो आप वहां पे स्कोर करते हैं यूपीएससी के लिए, वो कंडक्ट नहीं किए जाते फाइनल मेरिट लिस्ट में। एमपीएससी के लिए वो मार्क्स काउंट किए जाते हैं फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। यस बेटा, देखो रूल्स चेंज इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको साइट दी है ना, वो दी इसलिए है ताकि आप अपडेट रहें, उसमें सिलेबस भी रिवाइज होते जाते हैं। और सेकंड थिंग, नेगेटिव मार्किंग दोनों में है। 0.33% आपका डिडक्शन होता है जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें। अगर आप कोई एक गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए आपका जो सही जवाब जहां दिया गया है वहां से 0.33 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप 3 सवाल गलत जवाब देते हो तो एक जो सही जवाब है उसका टोटल मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं। What will be the syllabus focused on the foreign services? इंटरनेशनल पॉलिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, उसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सर इंफॉर्मेशन अबाउट द सीडीएस एग्जाम। सीडीएस एग्जाम के लिए मैंने आपको कहा कि ये ग्रुप बी सर्विसेज में, जो ग्रुप टाइप बी सर्विसेज में फीस कितना होता है सब एग्जाम के लिए। बेटा इसके लिए नॉमिनल फीस होता है
not more than 500 rupees. How do we get any marks in MPSC if we have a certificate of NCC? देखो NCC है या फिर if you are a national player या फिर national level पे अगर आपने कहीं पे स्पोर्ट्स में या क्या कहते हैं हम लोग ये यूथ फेस्टिवल्स होते हैं कल्चरल में आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसका एक वेटेज होता है, वो काफी मामूली वेटेज होता है। ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स। ठीक है, हम एक एक करके जवाब देंगे। प्लेंटी ऑफ बैंकिंग एग्जाम आईबी। एक मिनट, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, वहां पे एमपीएससी का जो एग्जाम पेपर्स है वो वहां से यू कैन गेट द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। शेड्यूल एग्जामिनेशन सिलेबस। मैं आपको पहले एक बार इसका सिलेबस दे दूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिवाइज सिलेबस की लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। विल बी एबल टू सी दैट। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस मिलेगा पीएसआई के लिए। महक इज आस्किंग अबाउट बैंकिंग। ओके, सो महक, आईबीपीएस जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो है ये वो इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करती है। आईबीपीएस के लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये होता है। तो आईबीपीएस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है, बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब सिंध बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक। तो इन बैंक के लिए जो पोजीशंस होती हैं, जैसे आईटी ऑफिसर जो एक स्केल 1 है, देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो स्केल 1 है, अगेन राज्यसभा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर, मार्केटिंग ऑफिसर, इसके लिए अलग अलग मतलब ये वाली पोजीशंस होते हैं। क्लर्क के लिए होती है, और आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनके लिए एग्जाम बेसिकली होती है। जो एग्जाम होती है वो अक्टूबर के आसपास होती है प्री एग्जाम, और नवंबर के आसपास उसकी मेन एग्जाम होती है। कई बार वो मेन एग्जाम जनवरी में भी जाती है। तो ये एक टाइम स्पैन है। ये जो एग्जाम है उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। पहले मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी बताना चाहूंगा। तो आपको तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 30 इयर्स, एंड मिनिमम जो है वो 20, मतलब 20 साल आपकी मिनिमम एज लिमिट चाहिए। मैक्सिमम जो है आप 20 साल आपकी उम्र चाहिए फॉर पीओ, फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर पोजीशन। बैचलर डिग्री ये आपका बेसिक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। यू शुड बी ग्रेजुएशन, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर दिस। फॉर क्लर्क ये जो एज लिमिट है इट इज फॉर 28 इयर्स। एसओ के लिए एज लिमिट इज फॉर 30 इयर्स। ठीक है। देन जो रीजनल रूरल बैंक्स है उसके लिए स्केल जो सीनियर मैनेजर पोजीशन होती है ऑफिसर स्केल की, उसके लिए 40 इयर्स है। देन 32 इयर्स, 30 इयर्स एंड 28 इयर्स फॉर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मल्टीपर्पज जो होता है ऑफिस असिस्टेंट, उसके लिए 28 इयर्स की एज लिमिट है। अब इसमें जो एग्जाम होती है प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 चीजें होती है जिसमें 30 मार्क्स, 35 मार्क्स और 35 मार्क्स, इतने ही मार्क्स होते हैं जो 20 मिनट्स होते हैं। ये होती है प्री। ये एज कम्पेयर्ड विद यूपीएससी एंड एमपीएससी काफी इजी एग्जाम्स है जिसमें लोग बहुत ज्यादा क्वालिफाई होते हैं जो यूपीएससी एमपीएससी प्रिपेयर करते हैं। ये देखा गया है ये ट्रेंड। और जो मेन एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव से 2 टेस्ट होते हैं। इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये एक सब्जेक्ट है, देन इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। अभी ये जो 4 टॉपिक मैंने बताया इसको 60-40 ऐसे समझ लीजिए। मतलब ये जो मार्क्स है, जैसे मैं फिर से बताता हूँ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो 60 मार्क्स के लिए होता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 40 मार्क्स के लिए होता है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन उसके लिए 60 मार्क्स होते हैं। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 मार्क्स होते हैं।
देन ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप में उसका क्वेश्चन पेपर होता है। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लेटर राइटिंग और ऐसे उसके ऊपर वो होता है। जैसा प्रीलिम्स में ये हो गया आपका मेन का। अब मेन में जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एचआर, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इसके ऊपर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। राजभाषा मतलब प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव फॉर राजभाषा, उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। देन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी एज कंपेयर्ड विद यूपीएससी एमपीएससी थोड़े कम होते जाते हैं। हमने पहले देखा कि वहाँ पे 100 और 50 ऐसे इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे 35-40 सवाल होते हैं। सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, व्हाट विल बी द बेस्ट फील्ड आई शुड गो इन यूपीएससी। देखो, यूपीएससी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी सर्विसेज है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट में और सेंट्रल में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, माहिती और तंत्रज्ञान, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से किया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है उसकी वजह से आपका जो मेजर है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो बेनिफिट होता है। एनी क्वेरीज? ये जो आशा ने चैट बॉक्स में लिंक भेजी है उसे आपको फिल करना है, और एनएसडीसी का कूपन कोड भी आपको रिसीव होगा। सर, बैंकिंग में जॉब करने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है? यस, कंपलसरी है। बैंकिंग सेक्टर, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो आईबीपीएस के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है, लेकिन फाइनल ईयर में आप अपियर कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हो तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए आईबीपीएस एग्जाम नहीं है। प्राइवेट में उनका अपनी हायरिंग की अपनी अलग पोजीशन है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कैंपस इंटरव्यू होते हैं, तो जो बैंक्स होते हैं वो कैंपस के लिए आते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। There are no more queries. चलो, thank you very much. Have a great day. All the best, everyone. If you need more information, you can connect with your mentor, and they will connect with us, and we'll be definitely there to help you. Thank you. Good day. Is anyone there? Sania? Yes, sir. So with that, we would close today's session, and I would like to thank each and everyone, every participant who has come today. A special thanks on behalf of University of Mumbai's Garware Institute of Career Education and Development, American India Foundation, and Dell Technology to our guest speaker. So I think the students really loved today's session, and they got all their doubts cleared, I think. And it was a pleasure to have you all come on board and share your views. And I would like to once again thank the principal. Yes, you have to fill the feedback link today as well. मैम, फीडबैक लिंक को क्लिक किया तो उसने बोला you had already submitted once. Yesterday I had done. Today what again I have So to you do? don't need to do it again. If you have done yesterday already, you don't need to do it. So I would like to thank the principal, Dr. Geeta Menon ma'am, and of course Dr. Neelam Mulchandani ma'am, and of course Vice Principal ma'am Neelam Kapoor ma'am. Thank you so much for this opportunity, and of course on behalf of University of Mumbai's Garware Institute and Career Education and Development, American India Foundation, and Dell Technologies, I thank you all and wish you all the best for your future. Just an important announcement. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. All the students, kindly note that you have to fill the feedback form. The link has already been shared by Mahima ma'am. So please fill the feedback form. As soon as you will submit it, the e-certificate will be provided in your email ID. Kindly note down that.
Thank you so much, ma'am. Yes. Okay, we can close down now. ठीक है? Okay, ma'am. Yeah. Thank you so much, ma'am. हाँ, thank you. Bye, ma'am.